ایسا لگتا ہے کہ خداؤں نے خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا اور خوبصورتی سے آراستہ کیا. تمہیں ایسا نہیں لگتا؟ ہمارے قصر کے پیشکار جناب ہنیفر کو یہاں بلاؤ. اس نے یہ اپنے لباس کے نیچے چھپایا ہوا تھا. یہ یوزارزیف کی صنعت فروخت ہے بانو حضور. کسی شمون نامی شخص نے یوزارزیف کو بدست مالک فروخت کیا ہے. اسے تو ہمارے قصر کے خزانے میں ہونا چاہیے تھا، نہ کہ تمہارے پاس. جیسی آپ کی مرضی. بانو حضور، یوزارزیف آپ کے سپرد ہے. میں چاہتی ہوں کہ اس کی بہتر طور پہ تربیت ہو. قصر میں زندگی گزارنے کے طور طریقے رومرہ کے ساتھ پیش آنے کے آداب سیکھے. امید ہے کہ ہمارے قصر کے لائق فائق پیشکار بطور احسن اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہوں گے. تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کا یہ تعظیم کرنا عذر احترام ہے؟ یہ صحرا نشین چرواہا یہ بھی نہیں جانتا کہ جھکا کس لیے ہے، اور عام یہ امید رکھتی ہیں کہ اس کی یہ تعظیم عذر احترام ہو. اس لباس میں تو اور بھی خوبصورت ہو گیا ہے. اس کی منہ پر اتنی تعریف مت کریں، مغرور ہو جائے گا. میرے ساتھ آؤ. یہ کمرہ جو دیکھ رہے ہو، یہ زلیخا اور پوتیفار کے نہایت ہی قریب اور عزیز ترین مہمانوں کے لیے مختص ہے. اس کمرے تک آنے کے لیے ان 7 دروازوں سے جہاں سے ہم گزر رہے ہیں گزرنا پڑتا ہے. ان 7 دروازوں پر مضبوط قفل لگے ہوئے ہیں کہ اگر یہ دروازے مقفل ہوں تو کسی کو اس کمرے میں آمد و رفت کی مجال نہیں. ان دروازوں کی چابی صرف بانو زلیخا کے پاس ہوتی ہے. اور یہ ہمارے قصر کا خوبصورت ترین منظر ہے، اور یہاں سے ہمارے مصر کے سب سے بڑے دریا نیل کا بخوبی نظارہ کیا جا سکتا ہے. اور اس طرف مغرب کی جانب شہر خموشاں نظر آ رہا ہے. میرے ساتھ آؤ. یہ بانو زلیخا کا مخصوص کمرہ ہے. وہ ایک مغرور اور متکبر اشراف زادی ہے. خیال رہے کبھی بھی ان کے حکم سے روگردانی مت کرنا. چلو. یہ جناب پوتیفار کی استراحت گاہ اور کتاب خانہ ہے. پوتیفار مصر کی دوسری بڑی شخصیت ہے، اور تمہیں سیکھنا چاہیے کہ ان کے اور دیگر اہم شخصیات کے روبرو بطور احترام کس طرح کولنش بجا لانا ہے. اور وہ ہے سوفر جناب پوتیفار کا مخصوص خدمتگار اور کتاب دار. چلیں. یہ جناب پوتیفار اور بانو زلیخا کے کھانا کھانے کا مخصوص کمرہ ہے.
یوسف کو نجات دلانی ہوگی. مجھے کچھ کرنا ہوگا. کیا یوسف کسی قید و بند یا زندان میں ہے جو اسے نجات دلاؤ گے؟ مگر پھر بھی وہ ایک غلام ہے. لیکن اس پرشکو قصر میں اس کا حلیہ غلاموں کا سا نہیں تھا. اگر کسی پرندے کا قفس خوبصورت ہو تو کیا وہ پرندہ اسیر نہیں ہے؟ میں اس وقت تک مصر کو ترک نہیں کروں گا جب تک کہ یوسف کو یعقوب نبی کے پاس نہ لے جاؤں. لیکن تم نے دیکھا کہ عزیز مصر اور ان کی ملکہ یوسف کو کس قدر چاہتے ہیں. لیکن یعقوب نبی جتنا نہیں. مجھے یقین ہے کہ وہ یوسف کی جدائی کی آگ میں جل رہے ہوں گے. لیکن مالک، یوسف نے بتایا تھا کہ اس کا مصر آنا ارادہ خدا بندی کے تحت ہے. یہ میرا آخری تجارتی سفر تھا. تم جلد سے جلد مال تجارت فروخت کر کے بابل واپس لوٹ جاؤ. یہ خدمتگاروں اور غلاموں کا رہائشی حصہ ہے. ان میں سے کچھ تو قصر پوتیفار کے کاریگر ہیں اور کچھ یا تو قصر کے مختلف شعبوں میں کام کرتے ہیں یا کپاس اور نرسل کے کھیتوں میں کاشتکاری کرتے ہیں. ان میں سے اکثر مرد و خواتین اس وقت مصروف کار ہیں. ان میں سے ہر ایک کمرے میں ایک خاندان رہائش پذیر ہے. یہ لوگ اتنی مفلسی و بدحالی کا شکار کیوں ہیں؟ جناب پوتیفار ان پر کوئی توجہ کیوں نہیں دیتے؟ ٹپس میں دیگر خدمتگار، غلام اور مزارع وغیرہ بنسبت ان کے کہیں بدتر حالت میں ہیں. ہم انہیں رہنے کے لیے مکان اور مناسب غذا فراہم کرتے ہیں اور ان کی اور ان کے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. کیا میں کبھی کبھی ان سے ملنے آ سکتا ہوں؟ کیوں نہیں، لیکن بہتر ہوگا کہ بانو زلیخا اور عالی جناب پوتیفار سے اجازت لے. یہ غلام حمالیاں اٹھانے کے لیے مخصوص ہیں. چلو یہاں پر نرسل سے کاغذ تیار کیا جاتا ہے. درود پر عالی جناب ہونے پر. نرسل کتابت کے کام آتا ہے. ہم تو کتابت کے لیے حیوانات کی کھال استعمال کرتے ہیں. یہ جانوروں کی کھال سے کہیں بہتر ہوتا ہے. تم لکھنا جانتے ہو؟ جس نے مجھے خلق کیا ہے اسی نے لکھنا بھی سکھایا ہے. یہ تو بہت اچھا ہے. جو غلام لکھنا جانتا ہے وہ اس کے مالکوں کے لیے بڑی نعمت ہے. کیا کہا تم نے؟ کس سے سیکھا ہے؟ اس مربی سے جو میرا مختار ہے. وہ تمام زبانیں جانتا ہے. یہ اچھی بات ہے. چلیں.
यहाँ कतान कपड़ा बुना जाता है। कतान वही कपड़ा है जो हम कमर के गिर्द बांधते हैं और इससे लिबास तैयार करते हैं। नफीस तरीन कतान जो यहाँ तैयार होती है वो शाही कतान के नाम से मारूफ है। ये कारखाना सिर्फ अहलियान कसर के लिए कतान कपड़ा तैयार करता है। बानो जुलेखा वो मिस्री अशराफजादी हैं जिनके लिए इस कारखाने में निहायत नफीस और खूबसूरत कपड़ा तैयार किया जाता है। चलो ये कारखाना है सफालगरी। दरूद पर आली जनाब होने पर। आब रसानी की चंद नालियां सवारी गुजरने की वजह से टूट गई, उन्हें तब्दील करना है। इस नाप का है ना जनाब? हाँ हाँ, इसी नाप का है। इनके तैयार होते ही तब्दील करा दूंगा। ठीक है। ये अनाज का गोदाम। बावर्ची खाने की जरूरत की तमाम अशियाए खुर्दनोश की निगहदारी यहाँ होती है। तुम्हारे हवास कहाँ हैं? ठीक से काम करो। याद रहे, आज के बाद जब तक तुम्हें बुलाया न जाए और कोई सवाल न किया जाए, जवाब नहीं दोगे। जुलेखा एक मुतकब्बिर खातून है और बसा औकात दरबारियों की तरह सख्त गिर और बेरहम भी हो जाया करती है। ये कसर का बावर्ची खाना है। यहाँ मुख्तलिफ अफराद के लिए मुख्तलिफ ग़िज़ाएँ तैयार की जाती हैं। खिदमतगारों और ग़ुलामों के लिए अलग, कसर के मुंतज़मीन और मसूलीन के लिए अलग, और जनाब पुतिफार और बानो जुलेखा के लिए खाने का अलग एहतमाम किया जाता है। मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ाएँ क्यों? क्या सबके लिए एक ही किस्म का खाना तैयार नहीं किया जा सकता? जाहिर है कि ऐसा नहीं हो सकता। जनाब पुतिफार और बानो जुलेखा गुलामों और खिदमतगारों के बराबर तो नहीं है ना। ये युजार शेफ आज से युजार शेफ ग़िज़ा की तक़सीम में आपकी मदद करेगा। युजार शेफ पढ़ना लिखना जानता है, चुनाचे उस फहरिस्त के तहत जो हम उसे देंगे हर शोबे को उसकी तादाद के मुताबिक ग़िज़ा तक़सीम करेगा। देख रहे हो किस इश्तियाक से तुम्हें देख रहे हैं। सिर्फ तुम्हारी खातिर यहाँ जमा हुए हैं। यहाँ क्या कर रहे हो? अपना अपना काम क्यों नहीं करते? जाओ अपना काम करो, अपना काम करो। ये कसर का इबादत खाना है। पुतिफार और बानो जुलेखा और दीगर अहलियान कसर यहाँ इबादत करते हैं। हम अपने खुदाओं की यहाँ निगहदारी करते हैं। यानी आपके खुदा जाओ मकान के मोहताज हैं? तो जाहिर है धूप और बारिश में ज़ेरे आसमान तो नहीं होना चाहिए ना।
दुरूद बर जनाब होने पर पेशकार आला। उमूमन कसर के दौरे के लिए सुबह का वक्त मखसूस है, आज खिलाफ मामूल इस वक्त कैसे? युजारशिफ को कसर दिखाने के लिए लाया हूँ। मैंने चाहा कि वो कसर और अहलियान कसर से आशना हो जाए। क्या हो गया है? कसर से कुछ जवाहरात चोरी हो गए हैं। ये कसर के दाखिली दरबान है और इन दोनों में से कोई भी एतराफ करने को तैयार नहीं है। तो चलो चलकर देखते हैं। दोनों को ही निगहबानों और साकरान कसर की इबरत के लिए तख्तेदार पर चढ़ा दो। अगर इकरार न करे तो हतमन ऐसा ही करो। मैंने बिल्कुल चोरी नहीं की है, मैं बेकसूर हूँ। यकीन कर इस तरह तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा कि कौन क्या कह रहा है। लेकिन जनाब हुनीफर, खुदाओं की कसम मेरा कोई कसूर नहीं। सब जानते हैं मैंने कभी चोरी नहीं की। असल में जिस रोज चोरी हुई वो मेरी निगरानी का दिन नहीं था। पता नहीं ये मुझे क्यों पकड़ कर लाए हैं। आखिरकार तो हमें मुजरिम का पता चल ही जाएगा। बेहतर होगा कि खुद ही इकरार कर लो और मसले को यहीं खत्म कर दो। इसका कहना है कि तुम इसका ध्यान बढ़ते ही इसकी मामूलियत की जगह पर दाखिल हुए थे। मैं इसकी मामूलियत की जगह पर? ये सच नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। गलती हो गई, मैं मजबूर था। किस तरह बताऊं कि चल लम्हों के लिए मेरी आंख लग गई थी। यानी इस कसर में कोई शख्स भी ऐसा न था जिसने मुझे देखा हो। निगहबान को चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी के दौरान निहायत होशियार और चौकन्ना रहे। तुम्हें सोना नहीं चाहिए था। तुम खताकार हो। तुमने एक तो अपनी जिम्मेदारी से गफलत बरती और दूसरा ये कि तुम्हारा कोई गवाह भी नहीं है। लेकिन आली जनाब, मैं चोर नहीं हूं, मुझ पर रहम कीजिए। मुझे अफसोस है। निनिफर किप्ता को आजाद कर दो और इसको जंदान में डाल दो। आली जनाब, मैं चोर नहीं हूं। खुदाओं की कसम मैंने चोरी नहीं की है, मुझ पर रहम करें। तुम पर खुदाओं की लानत हो निनिफर। तुम पर खुदाओं का कहर टूटे। इन्हें हकीकत क्यों नहीं बता देते? मुंह बंद करो। आली जनाब, मैं चोर नहीं हूँ। सच कहता हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। आली जनाब, मैं चोर नहीं हूँ। मैं चोर की शनाख्त कर सकता हूँ। नहीं बरखुदा, ये तुम्हारा काम नहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। क्या आप नहीं चाहते कि चोर की शनाख्त हो? क्यों नहीं? तुम कैसे चोर की शनाख्त करोगे? मैंने अपने बाबा से सीखा है। वो फैसला देने में बड़ी महारत रखते थे। तुम्हें यकीन है? जी जनाब हुनीफर, आप चाहें तो आजमा लें। देख लेते हैं। मैं जानता हूँ कि चोर कौन है। बेहतर होगा एतराफ कर लें और अपने जुर्म को मजीद संगीन न करें। असल में जिस दिन कसर से जवाहरात चोरी हुए मैं पैरे पर था ही नहीं। मैं बेगुनाह हूँ। मैंने चोरी नहीं की, मेरे पास गवाह भी नहीं। लेकिन मैंने नैनीपर को चोर ये है, अपनी तलवार निकाल ले। यही चोर है, इसकी गर्दन उड़ा दे। नहीं नहीं, मैं एतराफ करता हूँ कि चोरी मैंने की है। माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए जनाब रुदामून। मैं सोच भी नहीं सकता कि इतनी जल्दी एतराफ कर लोगे। आफरीन युजारशिफ, आफरीन। ले जाओ इसे।
आफरीन बरखुरदार। मैं जानता हूँ कि चोर कौन है। बेहतर होगा एतराफ कर लें और अपने जुर्म को मजीद संगीन न करें। असल में जिस दिन कसर से जवाहरात चोरी हुए मैं पहरे पर था ही नहीं, मैं बेगुनाह हूँ। मैंने चोरी नहीं की, मेरे पास गवाह भी नहीं, लेकिन मैंने नैनीफर को जवाहरात के कमरे से बाहर निकलते देखा था। बेगुनाह कौन है मैं जानता हूँ। तुम खौफ में मुब्तला मत हो और गुनाहगार को भी खूब पहचानता हूँ। जल्द ये सब भी उसे पहचान लेंगे। मैं जनाब हुनीफर से दरखास्त करता हूँ कि जैसे ही गुनाहगार की निशानदेही करूँ फौरन उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। मुझे बस उसका पता चल जाए। रुदामून तैयार खड़ा है। मैं उसे मोहलत नहीं दूंगा, बस एक इशारे की देर है। जनाब रुदामून, इन दोनों को इस बागीचे के सामने में 2 जानों बिठा दें। इनकी आंखों पर पट्टी बांध दें। रुमाल लाओ। इनके हाथ बांधो। एक बार फिर चोर को मोहलत दी जाती है। अगर खुद एतराफ जुर्म कर ले तो बख्श दिया जाएगा, लेकिन अगर हमने उसकी निशानदेही कर दी तो जनाब रुदामून यहीं पर उसकी गर्दन उड़ा देंगे। चोर ये है, अपनी तलवार निकाल ले। यही चोर है, इसकी गर्दन उड़ाते हैं। नहीं, मैं एतराफ करता हूँ कि चोरी मैंने की है। माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए जनाब रुदामून। मैं सोच भी नहीं सकता कि इतनी जल्दी एतराफ कर लोगे। आफरीन युजारसिफ, आफरीन। ले जाओ इसे। आफरीन बरखुरदार, बहुत खूब। मुझे यकीन न था कि कामयाब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा मशकूर हूँ युजारसिफ। अगर तुम ना होते तो मैं बेगुनाह मारा जाता। तुम पर खुदाओं की रहमत हो। तुम्हारी बेगुनाही साबित करना मकसूद ना होता तो नैनीफर को हरगिज शर्मिंदा ना होने देता। ये इतना भी मासूम नहीं। अगर दोबारा कभी अपनी जिम्मेदारी से गफलत बरती तो सख्त सजा के मुस्तहक करार पाओगे। शुक्रगुजार हूँ, शुक्रगुजार हूँ। बहुत खूब बेटा, अब चलें, मेरे साथ आओ। कितना ज़हीन और होशियार है, देखा किस तरह उससे उगलवाया है। खूबसूरत भी है और ज़हीन भी। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा है कैसे इस बच्चे ने ये मसला हल कर दिया। वो जो समझ रहा था कि बस उसकी गर्दन अब कटी कि अब कटी, तेजी से अपनी जगह से उठा और अपने गुनाह का एतराफ कर लिया। वो कह रहा था, नहीं नहीं मुझे मत मारो, हाँ मैंने चोरी की है, मैं गुनाहगार हूँ, मैं एतराफ करता हूँ। और यूं युजारसिफ की इस तरकीब ने सबको बरताए हैरत में डाल दिया। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि इतना सा बच्चा और इतना अक्लमंद होगा। फिर तो मुझे जनाब पुतीफार का इस ग्रां कदर हदिये की बाबत शुक्रगुजार होना चाहिए। युजारसिफ पढ़ना लिखना भी जानता है,
آج سے کوئی بھی اضافی غذا نہیں لے جا سکتا۔ یوزرسیف ہر شخص کو اس کا حصہ فہرست میں لکھی گئی مقدار کے مطابق دے گا۔ ایک غلام کا پڑھا لکھا ہونا کسی نعمت سے کام نہیں۔ یوزرسیف کے قیام کا کہاں بندوبست کیا ہے؟ ابھی سوچا نہیں بانو۔ ظاہر ہے کہ غلاموں کے ساتھ اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ نہیں، غلاموں کے ساتھ نہیں، یہی اسی قصر میں سے ہونا چاہیے۔ وہ کمرہ جو میں نے تمہیں دکھایا تھا، یہ بتاؤ یوزرسیف، تمہیں وہ کمرہ پسند ہے؟ شکر گزار ہوں۔ اگر اجازت فرمائے تو میں چاہوں گا کہ میرا کمرہ بھی دیگر خدمتگاروں اور غلاموں کے ساتھ ہی ہو۔ میں تمہیں بتاؤں گی کہ تمہیں کہاں اور کس کے ساتھ رہنا چاہیے۔ سمجھ میں آیا؟ قصر میں غلام کی موجودگی قصر کے قوانین کے خلاف ہے اور دیگر غلاموں اور خدمتگاروں کی بغاوت کا باعث بنے گا۔ جب میں اور خداوند قصر جناب پوتیفار اس بچے سے دلی وابستگی رکھتے ہیں تو اوروں کو اظہار خیال کا کوئی حق نہیں۔ یوزرسیف، میرے بیٹے، میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ تم مجھے اپنے بابا کی طرح سمجھو اور کوئی بھی مشکل ہو تو مجھ سے کہنا۔ شکر گزار ہوں۔ بیچارے میرے بابا، خدا انہیں صبر دے۔ سنو اے کنان کے بھیڑیوں، میں تم سے مخاطب ہوں، خاموش کیوں ہو؟ بابا، کیا بھیڑیے بھی باتیں کرتے ہیں؟ نہیں میرے بچے، لیکن اگر خداوند چاہے تو میری بات کا جواب ضرور دیں گے۔ دیکھو بیٹا، دیکھو بیٹا، آ گئے۔ آخر تم لوگوں نے اپنے بھائی پر کیا آفت ڈھائی ہے؟ تم بتاتے کیوں نہیں لاوی؟ بابا وہ بھیڑیے جھوٹ بولتے ہو۔ بھیڑیوں نے انکار کر دیا، انہوں نے بتایا کہ انہیں یوسف کی کوئی خبر نہیں۔ بھیڑیے نے؟ بابا جان، بھیڑیے نے کس طرح انکار کیا؟ میں نے بھی سنا ہے، بھیڑیے نے بابا سے باتیں کی، بتایا کہ یوسف کو ہم نے نہیں کھایا ہے۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے بتا دو کہ تم لوگوں نے یوسف کے ساتھ کیا کیا ہے، ابھی بھی وقت ہے۔
हमें खुद नहीं पता, बहुत ढूंढा। भेड़ियों पर तोहमत मत लगाओ। जो कुछ किया है तुम भेड़िया सिफतों ने किया है। आओ तौबा कर लो और हकीकत बता दो। खुदा हर किसी को तौबा की तौफीक नहीं देता, बिलखुसूस उन लोगों को जिनके कुलूब पत्थर के हो जाएं। खुदा निगहबान मालिक, फिर मिलेंगे। खुदा निगहबान। युजार सेफ को यहां लेकर आओ। तुम्हारे साथ गुजारे इन चंद सालों में मुझे अंदाजा हो गया कि मैं कभी भी साबे औलाद नहीं हूंगा, और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें मां बनने की नेमत से महरूम रखूं। पहली बात तो ये कि अब रिश्ता इज़्दिवाज पे मुंसलिक हुए चंद साल ही हुए हैं। क्या मालूम मुस्तकबिल में साहिब औलाद नहीं होंगे। मेरे खुदावन जनाब पोतीफार से मेरी वाबस्तगी औलाद की खातिर नहीं है। मैं आपकी इस मोहब्बत की कदर करता हूँ, और इसी मोहब्बत के पेश नजर मैंने युजार सेफ को आपकी खिदमत में पेश किया था, क्योंकि जानता था कि इस बच्चे की मौजूदगी आपकी खुशी और मुसरत का बाइस होगी। कोई चीज आपकी मोहब्बत से बढ़ के मेरी खुशी का बाइस नहीं। युजार सेफ को भी चूंकि आपका हदिया है, चाहती रहूंगी। आपका क्या ख्याल है कि अगर कभी हम साबे औलाद हो गए तो क्या हमारा बच्चा भी युजार सेफ की तरह खूबसूरत दिलनशी होगा? शायद, लेकिन इसकी तरह ज़हीन और फतीन तो हरगिज नहीं होगा। तुमने ऐसा क्या किया है कि बानो जुलेखा तुम्हारी इतनी तारीफें करती है? जनाब पुतीफार, आज युजार सेफ ने चोर की शिनाख्त के लिए जो चाल चली है, उसने सबको हैरत में डाल दिया है। आली जनाब, आज कसर में हर तरफ युजार सेफ की फेम फरासत के चर्चे हो रहे हैं। सब कह रहे थे युजार सेफ ने नैनिफर किप्ता को कैद करवाया है। तुमने पहले रोज ही साबित कर दिया है कि तुम बानो जुलेखा के मुंह बोले बेटे बनने की अहलियत रखते हो।